اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ بات ہو رہی ہے رزق کی، سامان زیست، زندگی کا سامان سارا، یہ نہیں کو دانا پانی نہیں، باقی سب کچھ جو بھی زندگی کے گزارنے کے لوازمات ہیں۔ تو اس میں ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ انسان کی اپنی صحیح اور کوشش سے اس کو دستیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں پروڈیوسر ہے، پیدا کیے ہیں اس نے، رزق کے سامان زمین میں رکھ دیے ہیں، آسمان سے بارش برس دیا ہے، جیسے بھی ہے معدنیات ہیں، جو کچھ ہے اللہ کے پیدا کردہ ہیں۔ ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتا، وہ ڈسٹریبیوٹر نہیں ہے۔ آگے جو انسانوں کو ملنے ہیں انفرادی سطح پر، وہ وہاں نظام انسانوں نے خود ڈیولپ کرنا ہے، مساوات پر مبنی۔ اور اس میں یہ بات بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس میں کافر و مومن کا کوئی فرق نہیں ہے۔ قانون دیکھیں جب بنتا ہے کسی ملک میں، تو وہاں کوئی یہ اقلیتوں کو دیکھ کر نہیں بنایا جاتا۔ مجموعی طور پر جو قانون بنتا ہے اس میں سب کے لیے وہ بنتا ہے، برابر ہوتے ہیں قانون کی نظر میں، سب برابر ہوتے ہیں، سبھی یہ لوگ بولتے ہیں۔ ملک کا جو بھی، جس بھی ملک کا جو بھی قانون بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ایسا کرتا؟ اس کا بھی ایسا ہی ہے کہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا، خلق کیا، انسان اس کی مخلوق ہیں، سب اس نے پیدا کیے ہیں، تو وہ فرق کیوں کرے کسی کے خاص کسی کے ساتھ؟ تو اس میں نے سورہ بنی اسرائیل کی 18 اور 20 نمبر آیات کا ذکر کیا تھا، جس میں آخر میں ہے کہ اللہ کی عطا پر کسی کی روک نہیں، وہ سب جو بھی کوشش کرے گا، کیا کوشش کرے گا، اس کے جو قوانین ہیں ان کو اصل میں جاننا ہے۔ وہ جو بھی چیز آپ کرنا چاہتے ہیں رزق کے بارے میں، تو اس کے قوانین دیکھیں، کیا رکھے ہوئے اس نے، قدرت نے، کس طرح آپ زیادہ سے زیادہ رزق حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ قوانین کی بات کر رہا ہوں، اور یہی انہی قوانین کا ذکر آگے ہے کہ جو بندہ ان قوانین سے اراض برتے گا، دوری اختیار کرے گا، ان صرف نظر کرے گا، بے اعتنائی برتے گا، تو اس کا رزق تنگ ہو جائے گا۔ رزق کے حوالے سے جو کچھ ہے اس کا رزق تنگ ہو جائے گا۔ جیسا کہ ہم کرتے ہیں، جو اللہ کے رزق کے قوانین ہیں ان کی طرف نہیں آتے، ہم اور ہی طرف چل پڑتے ہیں، وہی ورد وظائف کی طرف۔ یا جیسے کہ ہم نے کہا کہ فاقے مٹانے کے لیے ہم سورۃ واقعہ پڑھیں جی عشاء کی نماز کے بعد۔ اب دیکھیں یہ عملی طور پر چیز ایک طرح سے ثابت ہو چکی ہے کہ یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت سارے وظائف سے بھی، اور خاص کر اس چیز، مگر ہم یہ بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہم کہہ سکتے، نہیں کہتے، نہیں، بس چلے آ رہے ہیں، اور وہی باتیں ہیں کہ ایک فرمان کی اگر نافرمانی کر دی کو بندہ کافر ہو گیا۔ یہ بعد میں جب یہ روایات بنی مرتب ہوئی، تو اس وقت ہی یہ فتویٰ علماء کرام نے بنایا ہوگا نا، اکٹھے ہو کے 200-250 سال بعد، کہ ان کو اگر کسی نے نہیں مانا، کسی ایک کا بھی انکار کیا، یعنی کہ ان کو اس طرح پختہ ان کو بنیاد فراہم کرنے کے لیے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے جب ان قوانین سے اراض برت لیا، تو یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا، کہ پھر اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ یہ تنگی والی بات بھی ہماری بڑی عجیب ہے، ہم نے جہاں بھی ٹوسٹ دیا بات کو، فوراً مرنے کے بعد تک لے گئے، مرنے کے جنت اور جہنم کا تصور ہی ہمارا مرنے کے بعد کی زندگی پر بن گیا، اس سے پہلے یہ نہیں۔ اگر جس کی روزی یہاں تنگ ہے تو وہ کم جہنم گزار رہا ہے۔ یہ نہیں کہ مرنے کے بعد آپ کو جنت اور جہنم نہیں ملے گی، جنت اور جہنم ہے بالکل، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن بھائیو ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے۔ قانون مشیت جس کے مطابق اس کی بست و کشاد ہوتی ہے، یہ ذکر ہو چکا۔ چنانچہ اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ آگے یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہ ہے سورۃ طٰہٰ کی 124 نمبر آیت،
क्या कि जो शख्स या कौम हमारे कवानीन से अराज बरतेगा या अन जिक्री हमारे जिक्र से अराज बरतेगा तो उसकी रोजी तंग हो जाएगी। जिक्र से क्या मुराद है? यही देखिए, यहाँ भी हम वो ही गलत रास्ते की तरफ ही चल पड़ते हैं। तस्वीर पकड़ लें, अल्लाह का जिक्र शुरू कर दें, आगे फिर जिक्र बताते हैं, बताने वाले आपको अमल बैठे हैं, पीर बैठे हैं, वो बता देंगे कि आप इस चीज़ का जिक्र करें, इस चीज़ का जिक्र करें, इस सूरत की फलां आयत पढ़े या इस सूरत को फलां वक्त इतनी दफ़ा पढ़े, इस तरफ चल पड़ेंगे। ये गलत रास्ता है, ये कवानीन खुदाबंदी नहीं है रिज़्क हासिल करने के लिए। और इसी में ही हम ले गए कि ये रोजी तंग हो जाएगी, शायद मरने के बाद उसकी रोजी तंग हो जाएगी, और मरने के बाद पता नहीं। लेकिन इससे अगली आयत, इसी आयत का ही बल्कि हिस्सा जो आप देखेंगे तो उससे बात वाज़ेह हो जाती है कि नहीं, इधर ही की बात है। वह ना शोरो हो यौमल के यामाते आमा, जिसकी जहां रोजी तंग होगी उसे क़यामत के दिन भी अंधा उठाया जाएगा। बात वाज़ेह होगी ना, दो टोक वाज़ेह होगी। ये इधर की बात है जहां रोजी तंग होगी है, और क़यामत के दिन अंधा उठाया जाएगा। इससे अगली आयत को आप देखें, आयत को देखें तो उसमें वो सवाल करेगा, बारी तला मैं देखने बालने वाला बंदा था दुनिया में, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया, ये अंधा क्यों कर दिया मुझे? तो उसका जवाब आएगा कि जो मेरी नसीहतें तुम्हारे पास आई थी तुमने उन पर गौर ही नहीं किया। हम जब देखा नहीं तो फिर अंधा ही हो गया ना। जब बंदा कोई चीज कोई दिखाना चाहे तुम्हें, और तुम्हारा आका और मालिक और खालिक तुम्हें दिखाना चाहे, तुम वो चीज देखो ही नहीं तो तुम अंधे ही हो गए हैं। ये सूरत बकरा की इब्तदाई या यादगार बन 35 हवाला बाज दफा मैं भूल जाता हूँ। तो उसमें आदम को यही कहा गया कि जाओ अपने इस मुकाम से तुम उतर गए, और जिस मकसद के लिए उसको पैदा किया गया था, मकसद जमीन के लिए, जमीन का खलीफा था, तो वहां वो चला गया। और फिर साथ ही तसल्ली दे दी कि मेरी नसीहतें तुम्हारे पास आएंगी, तो गम और हुज़न करने की जरूरत नहीं, मेरी नसीहतें तुम्हारे पास आएंगी। जो कोई उनको देखेगा, उन पर अमल करेगा, तो वो दुनिया के गम और मलाल से महफूजन से महफूज रहेगा। रिज़्क़ की तंगी से बढ़कर और क्या हुज़न और मलाल है बंदे के। आज फिक्र माश ही है, हमें सारा मसला ही माश का है। दुनिया में जो कुछ वसाइल की जांगी है ना, आपके सामने है ये सारा कुछ। तो मेरे भाइयों, मैं ये आपको बताना चाहता था कि आप एक तो गौर करें जिक्री पर, मेरा अल्लाह के जिक्र पर, वो क्या है, उसके कवानीन है, उस चीज के मुतल्लिका जो कवानीन है उनको आपने देखना है, इल्म हासिल करना है। हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज करार दिया गया, तो ये ऐसे नहीं करार दे दिया गया। बुनियाद ही ये है, इल्म हासिल करना है। और ये यहाँ की तंगी है, ये ना समझ लेना कि ये को आखिरत की तंगी है, यहाँ तो आप तस्बीह नहीं फेरी तो और आखिरत में आपको तंगी होगी, नहीं। इससे वाज़ेह है कि रिज़्क़ की तंगी कानून खुदाबंदी से अराज का नतीजा होती है। जिनका रिज़्क़ तंग है या जो गरीब हैं, आगे आगे भी बात चलेगी, यानी कि ये एक तरह से जो निज़ाम है सो चल रहा, ये उसका कसूर है। हमने देखिए क्या किया है, जुल्म क्या करते हैं। हमने कहा कि सब कुछ तो अल्लाह ही करता है, एक बात। दूसरी हमने कहा कि ये इमारत और गुर्बत जो है ये अमूर तकवीनी से, जब आलम खल्क पैदा किया अल्लाह ताला ने, तो उस वक्त तय कर दिया फलां ने गरीब रहना है, फलां ने नहीं रहना। यानी कि हमने गुरबा के सामने अल्लाह ताला को खड़ा कर दिया और कह दिया कि ये है वो जिसने तुम्हारा रिज़्क़ तंग लिखा है, हमारा इसमें क्या कसूर है। तो ये बात किसने बताई? महराब मेंबर से आई, मजहबी पेशवाइयत से आई, उलमा कराम नहीं बताई ना, और रवायात के हवाले से बताए। जब रवायात की बात हो जाए तो मेरे भाइयों, नबी की बात हो जाए, नबी के फरमान आ जाए, तो फिर कितना मुश्किल होता है उस पर बात करनी। कौन बात करे? जो करेगा ठीक उसी वक्त ही फतवा आ जाता है मुनकर हदीस का, और फिर बस आगे चल सो चल जी। ये आप देखें कि ये जुल्म हुआ है। अल्लाह ने कोई चीज बातिल पैदा नहीं की। हाँ जी, चे जाए कि वो इस तरह बंदों को भूख से मार दे। हाँ जी, एक तरफ उसका वादा है, यहाँ थोड़ा सा मैं अर्ज कर दूं, एक तरफ उसका वादा है कि कोई जी रूह ऐसी नहीं जिसके हमने रिज़्क़ का बंदोबस्त नहीं किया, और दूसरी तरफ साथ ही उसकी वादा खिलाफी हम कहते हैं कर दी उसने,
उसने भूख से मार दिया, क्योंकि उसके लिखा ही उसने ये था कि ये भूख से मैं इसको मारूंगा। क्या ये जुल्म नहीं है अल्लाह पर? एक तरफ हम कहते हैं कि उसने ये बात, और ये सूरत आल इमरान की 9 नंबर आयत में वो कहता है कि अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। क्या मजाक बनाया हुआ है? कुरान की आयात का एक मजाक ही है, वो इससे करने के मुतरादिफ है कि वो कहता है मैं वादा खिलाफी नहीं करता। हमने एक दफा एक ये बात हो गई, फिर उसने कहा कि मैं तुमसे वादा जिम्मेदारी ली अपने ऊपर, खुद ही वो पाबंद हुआ, किसी ने बाहर से उसको पाबंद नहीं किया। पाबंद क्या हुआ कि हर जी रूह के रिज़्क़ की जिम्मेदारी उसने ले ली। फिर हमने क्या किया आगे, हमको मर गया था, हमने कहा ये लिखा हुआ पहले था, तकदीर इसकी अल्लाह ने लिखी है, या गरीबी तुम्हें अल्लाह ने बनाया है, हैं? और तो भूख से मर गया। वो भूख से मर नहीं जाते लोग, थर में देखे दुनिया में और देखे। अब फलस्तीनियों का हाल देखें, बेचारे भूख से मार रहे हैं, वो इसराइली उनको बहुत जुल्म कर रहे हैं। दुनिया पर जो इस वक्त सबसे ज्यादा जुल्म अगर हो रहा है तो वो उन फलस्तीनियों पर हो रहा है, और वो कब से हो रहा है। इसका मेरे जहन में 2-3 ही वजूहात हैं। हमारी नाइतफाकी, हुक्मरानों की खुद गर्जियां, और दीनी लिहाज से हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी से दूर होना। जब हमारा ये मौकफ होता है कि साइंस को हम साइंस जूते की नोक पे रखते हैं, हमारे उलमा कराम का इस तरह तसव्वुर ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता मैं वो मना कर रहे हैं, लेकिन जो जो जिस तरह वो बयान करते हैं चीज़ों को, वहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? साइंस और टेक्नोलॉजी कोई अल्लाह से ज़्यादा ताकतवर तो नहीं है ना, ये तय करते हैं ना हम, तो करना है सब कुछ अल्लाह ने, ये तो कहते हैं ना मेहराबो मिंबर वाले। तो फिर हम क्यों जाएं साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ? हम अल्लाह को मनाएं। ऐसा है या नहीं है मेरे भाइयों? मुझे आप बताया करें, निशानदेही किया करें कि ये देखें कितना बड़ा जुल्म है हमें एक तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी से दूर करने का। उनके पास कितनी टेक्नोलॉजी है, किस टेक्नोलॉजी से वो मार रहे हैं मुसलमानों को। हम इधर देखें अफगानिस्तान में 20 साल तक ये लड़ते रहे तालिबान। हमने कहा अल्लाह की मदद से वो भाग गए या अमेरिका मजबूर हो गया। बेशक इसमें तालिबान की कुर्बानियां हैं, जो मर्दी है, बहादुरी है सारी। अगर वही टेक्नोलॉजी इनके पास होती है तालिबान के, तो शायद वो 20 दिन भी ना जान निकाल सकते, और वो आने की शायद जरूरत भी ना करते। अगर वही टेक्नोलॉजी इनके पास भी होती, थोड़ी सी भी कम होती, वो शायद इधर आते ही ना। ये जंग 20 माह पे 20 दिन भी शायद ना चलती, हिम्मत ही ना करते। अगर इनके पास भी एटम बम होता तो जरूरत ही ना करता अमेरिका इधर आने की। फिर मेरे भाइयों, क्या चीज है, हमें क्यों समझ नहीं आती? हम आंखें क्यों बंद किए हुए हैं? हम अल्लाह पर भरोसा, इसको क्यों नहीं समझते कि वो क्या है? ये भरोसा है, अल्लाह पर भरोसा किया तो क्या असर? फलस्तीनियों का अल्लाह पर भरोसा नहीं है? बताएं यार, अल्लाह पर भरोसा है या नहीं? उन अब जो जितनी दुखी वो कौम है, वैसे बात और तरफ जा रही, दुखी वो हैं जितने दर्द दिल के साथ वो दुआएं कर रहे हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे उनके चीथड़े उड़ रहे हैं गोश्त के बमों से, तो उनके दिल से दुआएं नहीं निकल रही। तो वो फिर क्या हो रहा है उन दुआओं का, स्वाय हम आंसू बहाने के। अब देखिए, मैं नेट पर देखता हूँ कि आवाज उठानी चाहिए, दिल को भरपूर उठाते हैं कोई दोस्त जमात इस्लामी के, बिल्कुल ठीक, अच्छी बात। कुछ ऐसे हैं कि बस दुआ ही कर दें। मेरे भाइयों, ईमान की कितनी हालतें बयान की हैं? 3 हालतें बयान की हैं ना बुराई को रोकने के लिए। ताकत है हाथ से रोको, नहीं हाथ से रोकने की ताकत रखते तो जुबान से कम जो बुरा है उसको बुरा कहो। जो वो भी नहीं कर सकते, कम से कम दिल में तो बुरा कहो। तो तुम कहते हो दुआएं करें, रो रो के हम दुआएं करें। कहाँ ऑप्शन है दुआ करने का कि कोई इस तरह का जुल्म हो रहा हो और तुम बैठे दुआएं करते रहो? खैर, बात हो रही है रिज़्क़ की, ये भी रिज़्क़ की बात कर रहा हूँ। रिज़्क़ क्या? वसाइल जिंदगी, हिफाजत, जीस को महफूज करने का सामान नहीं हमारे पास, मुसलमानों के पास, फलस्तीनियों के पास। उनके पास ये सामान नहीं है, तो वो उनको दुश्मन जो मार रहा है, ज़िबा कर रहा है, खून बहा रहा है ना उनका, इस तरह नहीं आते। यानी कि इनको दूर करने, मैं कहता हूँ, इस मुर्दे इल्ज़ाम ठहराता हूँ मेहराब मिंबर को, उलमा कराम को, और जो दीन इस वक्त हमारे पास जिसको हम कहते हैं जो असल नहीं है, ये है जिम्मेदार इस चीज़ का। हमें इस चीज़ से दूर कर दिया गया है, साइंस और टेक्नोलॉजी से। ये दीन का हिस्सा थी, ये हमारे पास होना चाहिए था। अगर हम सही दीनी होते, हम मुसलमान होते सही, तो ये ताकत जो इस वक्त अमेरिका के पास है, बरतानिया के पास, इन लोगों चाइना और दूसरों के पास, ये हमारे पास होती।
हम भी वीटो पावर होते। वैसे तो मैं कहता हूँ कि वीटो पावर होनी ही नहीं चाहिए। ये एक तो ये जमहूरियत का लाग लाते हैं मगरबी ममालिक, तो दूसरा खुद ही देखें कि ये वीटो पावर एक तरह से जमहूरियत की नफी करती है। खैर, यानी कि हमारे पास आसमान अजीज नहीं है हिफाजत करने के लिए। जिंदा रहना तो बात फलस्तीनियों के पास, बेचारों के पास नहीं है। जुल्म हो रहा है उन पर बहुत। तो यही बात मैं बताना चाहता कि वो कानून खुदाबंदी के मुताबिक सारा कुछ होता है। जब नबी के सहाबा से कुछ थोड़ी सी गलती हुई, ओहद में उन्होंने घाटी को छोड़ा, तो उसी वक्त कितना नुकसान हो गया, 70 सहाबा शहीद हो गए। जो शख्स कानून फितरत के मुताबिक जिस कदर कोशिश करेगा, उसे उसी कदर रिज्क फरावां मिलता जाएगा। सीधी सी बात है, उसने कानून बना दिया है, कानून के मुताबिक आपको सारा कुछ होना है। यही कानून हर रसूल की वसातत से उसकी उम्मत की तरफ भेजा गया था। चुनाचे यहूद नसारा के मतलब कहा कि अगर ये लोग, यहूद नसारा को कहा, अगर ये लोग तौरात और इंजील और जो कुछ अल्लाह ने नाज़िल किया है उस पर कायम रहते तो उन्हें ऊपर और नीचे से बाफराते रिज्क मिलता, वाफर मकदार में उनको रिज्क मिलता। ये मायदा की 66 नंबर आयत और आराफ की 96 नंबर है। 2 आयत में इनका इस चीज का जिक्र है। यहूद नसारा को, अगर तुम जो कुछ तुम पर, वही बात जो पहले आदम से वादा किया है कि तेरे पास मेरी नसीहतें आएंगी, न उनका जो बंदोबस्त किया अल्लाह ताला ने वो अंबिया कराम के जरिए किया, उन पर किताबें नाजिल करके, तो वो अगर तुम उन पर अमल करते, उनको सुनते, उन पर कान धरते, तो तुम्हें ऊपर नीचे मतलब बहुत ज्यादा जमीन से भी खजाने उबलते निकलते और ऊपर से भी बारिश के जरिए और तुम्हारी फसलें आबाद होती, जमीन आबाद होती, रिज़्क के ढेर लग जाता, जिससे हम कदे वाफर मकदार में तुम्हें रिज़्क मिलता। ये है कानून खुदाबंदी सीधा सा। हमने क्या बना लिया है, हमने क्या कर लिया है, किधर चल पड़े हैं हम। देखिए, ये बुनियादी तौर पर वही बात मैं कहता हूँ कि ये हमारा जिम्मेदार दीनी तबका है, दीन वाले हैं, महराब मिंबर वाले हैं, ये उलमा कराम है जो हमारे पास ये बताते हैं ये बात। ये कहते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी दीन का हिस्सा है, ये साइंस और टेक्नोलॉजी तुम्हारे रिज़्क का हिस्सा है। कहते हैं क्या रिज़्क नहीं है? रिज़्क के पूछे, रिज़्क की डेफिनेशन क्या? रोटी है सिर्फ खानी और पानी पी लेना है, ये रिज़्क है? सारी जिंदगी का सामान, जिंदगी का सामान में क्या ये चीज शामिल नहीं है कि उसकी हिफाजत भी तुमने करनी है? किस तरह तुम्हारी जिंदगियों की हिफाजत होगी? कोई आएगा बदमाश उचक कर ले जाएगा तुम्हें, या दरिंदा आएगा, या दरिंदा कौम कोई आएगी तो तुम्हें इस तरह ज़िबा करके चली जाएगी, वो सामान तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए? वो क्या ये दीन का हिस्सा नहीं है? नहीं। जमीन और आसमान के दरमियान जो कुछ है हमने तुम्हारे लिए मसखर कर दिया, कुरान का है ना हुक्म। यहाँ जमीन और आसमान के दरमियान जो कुछ है हमने इसे बिलहक पैदा किया। क्या मतलब है इसका? इसको प्रूवे कार लाना है, ऐसे नहीं पड़ा रहने दें, या उसने वैसे सुना दी तुमको ये है तो नहीं, तुमने इसका एहतसाब कायनात, मोमन की शान, मोमन की सिफ्त है, तस्खीर कायनात किया नहीं किया? क्यों नहीं आए? कीदा ही जब ये बना दिया कि सारा कुछ अल्लाह ने करना है, जब अकीदा ही हमारा ये बना दिया कि सब कुछ अल्लाह ने करना है, वही करता है, तो फिर इन चीजों की जरूरत नहीं। उसको राजी का, उसके राजी के तरीके भी हमने ढूंढ लिए, बना दिए जैली तौर पर। जो उसने कवानीन रखे हैं, लॉ ऑफ नेचर जिन्हें कहते हैं, उनकी तरफ हम आए ही नहीं, आने ही नहीं दिएगा, जरूरत ही नहीं है। आप देखिए कहाँ है अल्लाह के, तो ये मतलब बात को समझने की, अल्लाह ने करना सारा कुछ, तो फिर इस साइंस और टेक्नोलॉजी की जरूरत क्या है? तो बस मेरे भाइयों, ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता था। बात लंबी हो गई, चले, मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।